Good evening, students. Today we are going to start Economics Chapter 3, Poverty as Challenges. Today we will discuss these topics. First है poverty line, second है poverty estimates, third है interstate disparities and fourth है global poverty scenario. तो previous video we covered up to previous video में मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किए थे. फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, सेकेंड था प्रॉपर्टी एज ए सीन बाय सोशल साइंटिस्ट एंड थर्ड था प्रॉपर्टी लाइन. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी लाइन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझाया था. आज मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर्टी लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल से इंडिकेट करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी. तो जैसा कि मालूम है, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन प्रॉपर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लाइन. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor in India. Owing for a car is still considered a luxury. पॉवर्टी को पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया जाता है. यह लोगों के इनकम और कंजप्शन से मापा जाता है. ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल बेसिस नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए के पैमाने अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पर डिफरेंट होते हैं. इसलिए प्रॉपर्टी लाइन टाइम और प्लेस के साथ चेंज होती रहती है. यूएसए में किसी व्यक्ति के पास कार का ना होना पुअर कहलाता है, जबकि इंडिया में कार का होना क्या कहलाता है? लग्जरी कहलाता है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी. वाइल डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड medical requirement etc. are determined for substance. These physical quantities are multiplied by her prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement, food types such as cereal, pulses, vegetables, milk, oil, sugar together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex and type of work that a person does. The accepted average calories requirement in India is 2400 calories per person per day in urban areas, since people living in rural areas engage themselves in more physical work. Calorie requirements in rural areas are considered to be higher than in urban area. इंडिया में प्रॉपर्टी लाइन को डेफिनेट करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है. इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनके प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया जाता है. प्रेजेंट फार्मूला जो फूड रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है वह डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है. फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा से कैलोरी मिलती है. कैलोरी की जो ज़रूरत होती है एज, सेक्स, टाइप ऑफ वर्क से निर्धारित होती है. इंडिया में एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, जो रूरल एरियाज़ के लिए 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे, अर्बन एरियाज़ के लिए तय की गई है. मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल जो इस कैलोरीज को बाई करने के लिए ज़रूरी होता है उसे पीरियडिकल प्राइस के हिसाब से रिवाइज किया जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2000
poverty line for the person was fixed as 816 per month for rural area and rupees 1000 for urban areas despite less calories requirement. The higher amount of urban areas has been fixed because of high prices of money, essential products in urban century. In this way, in the year 2011-12, a family 5-member living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirements. इन कैलकुलेशन के बेसिस पर ईयर 2011-12 में प्रॉपर्टी लाइन रूरल एरियाज में पर पर्सन 816 पर मंथ फिक्स की गई, अर्बन एरिया में 1000 पर मंथ थी। यह अर्बन एरियाज में कम कैलोरी रिक्वायरमेंट के बावजूद ज़्यादा अमाउंट था क्योंकि अर्बन एरियाज में प्रेजेंटली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज़्यादा थी। इस तरह 2011-12 में रूरल एरिया में 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए 4080 पर मंथ से कम और जो अर्बन एरियाज होते थे वहाँ पर क्या होता था, अर्बन एरियाज में रुपीज़ 5000 पर मंथ से कम इनकम वाले लोग प्रॉपर्टी लाइन के नीचे माने जाते थे। प्रॉपर्टी लाइन को जो यदि हम एक पीरियोडिक सैम्पल सर्वे देखें तो इस सर्वे में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक प्रॉपर्टी लाइन के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। यह $1.9 पर पर्सन पर डे होता है। तो इस तरह से मैंने कहा था आपको प्रॉपर्टी लाइन के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी एस्टिमेट्स। प्रॉपर्टी एस्टिमेट्स क्या होता है, मतलब जो गरीबी की रेखा होती है उसको एक एस्टिमेट्स लगाना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल टू वन दैट देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन in poverty ratio in the India from about 45% in 1993-94 37.2 per percent. In 2004-05 the proportion of people below poverty line further came down to about 22% below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million and 2005 270 million in 2011-12 with an average annual decline 2.2 percentage points during 2004-5-2011। यदि हम प्रॉपर्टी एस्टिमेट्स को देखें तो जो हमारा बुक में टेबल दी गई है, बुक में ये हमारी प्रॉपर्टी इन इंडिया की टेबल दी गई है। इस बुक में इस टेबल को आपको जब खोलेंगे तो ये टेबल दिखाई देगी। इस टेबल में यह क्लियर होता है कि प्रॉपर्टी जो रेशियो है 19394 में कितना था, देखिए आप इस टेबल में कि 199394 में रूरल में 507 पॉवर्टी रेशियो था और अर्बन में 32 था। इसी तरह 2004-05 में 4226, 2009-10 में 3429, 2011-12 में 2614 था। इस तरह से नंबर ऑफ पुअर मिलियन के बारे में भी इसमें दिखाया गया। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी एस्टिमेट्स के बारे में बताया कि प्रॉपर्टी रेशियो जो था 1993-94 में 45% से कम होकर 2011-12 में कम हुआ। नंबर ऑफ पुअर पीपल 2005-04 में 407 मिलियन से कम होकर 2011-12 में 2070 मिलियन रह गया, जो एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2% रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या होती है? इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज होती है प्रॉपर्टी इन इंडिया आल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। ऑल्दो स्टेट लेवल प्रॉपर्टी हैज विटनेस्ड a secular decline from the levels of early 70s,
the success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while the All India head count ratio was 21.9% in 2011, 12 states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha and above the India poverty level as the graph 3.2 shows. Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with the poverty ratio and 3.7 and 2.6% respectively, along with the rural poverty. Urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. तो हर स्टेट में पुअर पीपल का जो प्रोपोर्शन होता है सेम नहीं होता। स्टेट लेवल प्रॉपर्टी अर्ली 70s के देखा जाए तो कम हो रही है। हर स्टेट में प्रॉपर्टी के कम होने के सक्सेस अलग अलग है। रिसेंट एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि ऑल इंडिया में प्रॉपर्टी लाइन जो है 21.9 थी, जबकि मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में यहाँ ऑल इंडिया लेवल से अधिक थी। 2011-12 में बिहार और उड़ीसा में पॉवर्टी रेशियो 3.7% और 2.6% था। केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा में प्रॉपर्टी लेवल एग्रीकल्चर ग्रोथ के कारण प्रॉपर्टी क्या हो यहाँ पर कम होगा। इसी तरह से हम देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में कितनी सारी विभिन्नताएँ हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल प्रॉपर्टी scenario. Global poverty scenario, the proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than 1.0 per day has fallen from 3.6% in 1990 to 10% in 2015. Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development. Number of poor in China has come down 8.3% in 1981 to 4.7% in 2008 to 0.7% in the countries of South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan. The decline has also have been percentage 2005. तो ग्लोबल प्रॉपर्टी सिनेरियो क्या था? वर्ल्ड बैंक ने एक्सट्रीम इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों की इनकम $1.9 पर डे के बेसिस पर माना है। यह 1990 में 3.6% से बढ़कर 2015 में 10% रह गई। चाइना में प्रॉपर्टी काफ़ी कम हो गई थी। साउथ एशिया कंट्रीज़ में भी है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट के कारण प्रॉपर्टी कम हुई। चाइना में प्रॉपर्टी 1981 में 88.3 से बढ़कर 2008 में 14.7% हो गई, जबकि 2015 में यह 0.7% रह गई। और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में यह 2005 से घटकर 2013 में 16.2% रह गई। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर्टी सिनेरियो कैसा था। यदि हम सब सहारा अफ्रीका में प्रॉपर्टी 2005 में 51% से घटकर कितनी हो गई? 2015 में 41% रह गई। लैटिन अमेरिका में यह 2005 में 10% से घटकर 2015 में 4% रह गई। न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन में 2030 तक वर्ल्ड में प्रॉपर्टी क्या पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुकी थी और गोल सेट किया गया था, समाप्त इसको ख़त्म करने का गोल सेट किया गया था। इस तरह से मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए। फर्स्ट था प्रॉपर्टी लाइन, सेकंड था प्रॉपर्टी सिनेरियोज, थर्ड था इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज एंड फोर्थ था ग्लोबल प्रॉपर्टी सिनेरियो। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, वॉच करिएगा, समझिएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं सेंड कर रही हूँ सबको याद करिएगा। आपके एग्ज़ाम में हर क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। एंड
अच्छे से चैप्टर को लर्न करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी।